Good morning, students of class 8th. Today I am going to teach you English literature, lesson 5th, Princess September. Okay. Princess September, like each one of her numerous sisters, received the gift of a parrot in a golden cage on her father's birthday. The parrot dies, and by chance a singing bird comes in its place. The princess shows off her pet to the sister, who advised her to put it in a cage. Okay, and this lesson has been written by Somrest Mogam. Okay, यानी in this chapter author says that अपनी कई बहनों में से प्रत्येक की तरह राजकुमारी सितंबर को भी अपने पिता के जन्मदिन पर सुनहरे पिंजरे में बंद एक तोता पुरस्कार के रूप में मिलता है। ठीक है, क्या मिलता है? एक तोता पुरस्कार के रूप में मिलता है। और तोता मर जाता है। सौभाग्य से एक गाने वाला पक्षी उसके स्थान पर आ जाता है। ठीक है। द प्रिंसेस शोज ऑफ हर पेट टू द सिस्टर हु एडवाइज हर टू पुट इट इन ए केज। और राजकुमारी अपने पालतू पक्षी को अपनी बहनों को दिखाती है, जो इसे पिंजरे में बंद करने को सुझाव देती हैं। ठीक है, लेकिन वो क्या करती हैं आगे इस स्टोरी में बताया जाएगा। द किंग एंड क्वीन ऑफ सियाम हैड मैनी डॉटर्स। हैड द क्वीन सेड दैट इट कन्फ्यूज्ड हर टू हैव टू रिमेंबर सो मैनी नेम्स। Okay. One day, the king decided to call them January, February, March, through, of course, in Siamese, till he came to the youngest, whom he called the September. Okay. He called the September. यानी सियाम के राजा रानी की अनेक पुत्रियां थीं और कहती थीं कि इतने नामों को, श्याम के राजा की अनेक पुत्रियां थीं और रानी कहती थी कि इतने नामों को याद करने में उसे परेशानी होती है। एक दिन राजा ने उनके नाम जनवरी, फरवरी, मार्च, बेशक सियामी भाषा में आदि रखने का निर्णय लिया और अंततः सबसे छोटी राजकुमारी का नंबर आया तो उसे सितंबर नाम दिया गया, सितंबर कहकर पुकारा गया। द किंग ऑफ सियाम हैड ए peculiar habit. Instead of receiving gift of the birthday, he gave them one year on his birthday. Not having anything else handy, he gave each of his daughters a green parrot in a golden cage. The princes were very proud of their parrots, and they spent an hour every day in teaching them to talk. Presently, all the parrots could say, God save the king, and some of them could say Pretty Polly in no less than 7 Oriental languages. Okay, यानी सियाम के राजा की एक अजीब आदत थी। अपने जन्म दिवस पर उपहार लेने के बजाय वह उन्हें उपहार देता था। एक वर्ष अपने जन्मदिन पर कुछ भी हाथ में ना होते हुए उसने प्रत्येक लड़की को, यानी प्रत्येक राजकुमारी को, सुनहरे पिंजरे में बंद एक हरा तोता भेंट किया। राजकुमारियों को अपने तोतों पर बहुत गर्व था। वे प्रतिदिन 1 घंटा उन्हें बोलना सिखाने में व्यतीत करती थीं। फिलहाल तोते प्रभु राजा की रक्षा करें कहना सीख चुके थे और उनमें से कुछ सुंदर पॉली को कम से कम 7 पूर्व की भाषाओं में बोल सकते थे। Okay, next. But one day when Princess September went to say good morning to her parrot, she found it lying dead at the bottom of its golden cage. Okay, golden
But one day when Princess September went to say good morning to her parrot, she found it lying dead at the bottom of its golden cage. She burst into a flood of tears, and nothing that her maids of honor could say comforted her. She cried so much that the maids of honor, not knowing what to do, told the queen. Okay, told the queen, and the queen said it was stuff and nonsense, and the child had ever go to and the queen said it was stuff and nonsense, and the child had better go to bed without any supper. The maids of honor wanted to go to a party, so they put Princess September to bed as quickly as they could and left her by herself. And while she sat in her bed, crying still even though she felt rather hungry, she saw a little bird hop into her room. She wiped her tears and sat up. Then the little bird began to sing, and he sang a beautiful song all about the lake in the king's garden and the willow trees that looked at themselves in the still water and the gold fish that glittered in and out of the branches that were reflected in it. When he had finished, the princess was not crying anymore, and she quite forgot that she had no supper. That was a very nice song, she said. Okay. In this stanza, author says that कि परंतु एक दिन जब राजकुमारी सितंबर अपने तोते को सुप्रभात कहने गई, यानी गुड मॉर्निंग कहने गई, तो उसने उस सुनहरे पिंजरे की सतह पर मरा हुआ पाया, यानी अपने तोते को मरा हुआ पाया। अब वह जोर जोर से रोने लगी। उसकी सेविकाएं उसे सांत्वना देने लगी, जो मेड सर्वेंट थी वो सांत्वना देने लगी, लेकिन वह सांत्वना देने के लिए कुछ न कह सकी जो उसे अच्छा कर सके। वह इतना रोई कि सेविकाओं ने न जानते हुए भी अब क्या करें रानी को बता दिया, और रानी ने आदेश दिया कि यह बेहूदगी और नासमझी है। लड़की को सोते समय आज रात का भोजन ना देना अच्छा होगा। सेविकाएं एक पार्टी में जाना चाहती थी, अतः उन्होंने राजकुमारी सितंबर को जितनी जल्दी वे कर सकती थी उतनी जल्दी बिस्तर में लिटा दिया, ठीक है, और उसे वहीं पर अकेला छोड़ दिया। जब वह बिस्तर में लेटी थी तो रोते हुए, जब वह भूख महसूस कर रही थी, उसको भूख लग रही थी, उसने एक छोटे से पक्षी को फुदक कर अपने कमरे में आते हुए देखा। उसने अपनी आंसू पोंछते हुए उठ बैठी। तब नन्हे पक्षी ने गाना गाना शुरू किया, और उसने एक खूबसूरत गाना गाया जो राजा के बगीचे की झील के बारे में था, और सरपत यानी सरई के उन पेड़ों के बारे में था जो स्वयं को ठहरे हुए जल में देख रहे थे, और उस सुनहरी मछली के बारे में था जो इसमें पानी में उन लहलहाती शाखाओं की परछाई में तैर रही थी। जब उसने गाना बंद किया तो राजकुमारी का रोना बंद हो गया, और वह भूल गई थी कि उसने रात को खाना भी नहीं खाया था। वह बहुत अच्छा गीत था, उसने कहा। ओके, राजकुमारी ने कहा बहुत अच्छा नाइस सॉन्ग था, बहुत अच्छा गीत था। प्लीज टर्न ओवर। द लिटिल बर्ड गेव हर अ bow. Would you care to have me in place of your parrot? Said the little bird. It's true that I am not so pretty to look at, but on the other hand, I have a much better voice. Princess September clapped her hands with delight, and then the little bird hopped on to the end of her bed and sang her to sleep. Okay, यानी in this stanza author says that कि जो नन्हा पक्षी था उसने उसे सलाम किया, ठीक है, सिर झुका के सलाम किया और कहा कि क्या तुम मेरी उस तोते की जगह देखभाल कर सकती हो, यानी जैसे तुम तोते को पालतू बना के रखती थी, देखभाल करती थी, क्या मेरी कर सकती हो। नन्हा पक्षी बोला,
यह सत्य है कि मैं देखने में अत्यंत यानी उसकी तरह सुंदर नहीं हूँ, परंतु दूसरी ओर मेरी आवाज़ उससे कहीं अधिक बेहतर है। राजकुमारी सितंबर ने खुशीपूर्वक अपने हाथ से ताली बजाई। तब तक वह नन्हा पक्षी फुदक फुदक कर उसके बिस्तर के किनारे गया और उसे सुलाने के लिए गाना गाने लगा। ठीक है, राजकुमारी को सुलाने के लिए गाना गाने लगा। When she awoke next day, the little bird was still there, and as she opened her eyes, he said, "Good morning." The maids of honor brought in her breakfast, and he ate rice out of her hand, and he had his bath in her saucer. He began to sing again so beautifully that the maids of honor were quite surprised, for they had never heard anything like it, and Princess September was very proud and happy. Okay. Now I want to show you to my 8 sisters, said the princess. यानी जब अगली सुबह नींद से जागी, यानी राजकुमारी जो है अगली सुबह नेक्स्ट मॉर्निंग जब नींद से जगी तो when she awoke next day, the little bird said, "Still here," and she opened her eyes. Good morning. Maid of honor brought her breakfast. यानी जब वह अगली सुबह नींद से जागी तो नन्हा पक्षी अब भी वहीं था, और जैसे ही उसने अपनी आंखें खोली, उस पक्षी ने सुप्रभात कहा। क्या कहा उस पक्षी ने? सुप्रभात बोला, गुड मॉर्निंग बोला। और उसके बाद सेविकाएं उसके लिए नाश्ता लाईं और उस पक्षी ने उसके हाथ से चावल खाए, उसकी प्याली में स्नान किया। वो इतना सुंदर गाने लगा कि इतना सुंदर कि सेविकाएं भी आश्चर्यचकित रह गईं, क्योंकि उन्होंने इतना सुंदर गाना इससे पूर्व कभी नहीं सुना था। और राजकुमारी सितंबर को बड़ा अभिमान और खुशी महसूस हुई। ओके, और अब राजकुमारी खुश हो गई और उसने कहा कि अब मैं तुम्हें अपनी 8 बहनों से मिलवाना चाहती हूँ। राजकुमारी बोली। She stretched out the first finger of her right hand so that it served as a perch, and the little bird flew down and sat on it. Then, followed by her maids of honor, she went through the palace and called on each of the princes. And for each of them, the little bird sang a different song, but the parrots could only say, "God save the king, God save the king," and "Pretty Polly." At last she showed the little bird to the king and the queen. They were surprised and delighted. Okay. यानी in this stanza, author says that, यहाँ लेखक कहते हैं कि उसने अपने दाएं हाथ की पहली उंगली इस तरह फैलाई ताकि वह पक्षी के बैठने का स्थान बन सके, और नन्हा पक्षी उड़कर नीचे आया और उस पर बैठ गया। ओके। तब सैनिकों द्वारा अनुसरण किए जाते हुए वह महल से गुजरी। ठीक है, और प्रत्येक राजकुमारी को बुलाया। प्रत्येक के लिए नन्हे पक्षी ने एक भिन्न भिन्न यानी अलग अलग तरह का गाना गाया, परंतु दूसरे तोते केवल प्रभु राजा की जय हो, प्रभु राजा की रक्षा करें, सुंदर पौली, बस यही कहते थे। अंत में उसने नन्हा पक्षी यानी राजा तथा रानी को दिखाया। वे आश्चर्यचकित तथा प्रसन्न थे। ओके। I knew I was right to send you to bed without any supper, said the queen. है ना, यानी फिर रानी कहने लगी, मैं जानती थी कि मैंने तुम्हें बिना रात्रि का भोजन दिए सोने को भेजकर ठीक ही किया। रानी बोली। ओके, यानी दिस bird sings much better than the parrots. ओके, अब देखिए अब यहाँ क्या होता है। This bird sings much better than the parrot, said the king. I should have thought you got quite tired of hearing people say, "God save the king," said the queen. Okay. I can't think why those girls wanted to teach their parrot to say it too.
The sentiments is admirable, said the king, and I never mind how often I hear it, but I do get tired of hearing those parrots say pretty Polly. They say it in 7 different languages, said the princess. I dare say they do, said the king, but it reminds me too much of my counselors. They say the same thing in 7 different ways, and it never means anything in any way they say it. Okay, यानी इन दिस स्टैंजा ऑथर सेज दैट यह पक्षी तोतों से कहीं बेहतर गाता है, यानी जो पहले मैं तोता गिफ्ट करता था उनसे कहीं बेहतर गाता है, अच्छा गाता है. ओके, मैं भी सोचती हूँ कि आप लोगों द्वारा कहे प्रभु राजा की रक्षा करें सुन सुनकर ऊब गए हैं. रानी बोली, मैं नहीं जानती कि लड़कियाँ उनके तोतों को यह कहना भी क्यों सिखाना चाहती हैं. दृष्टिकोण प्रशंसनीय है ना. राजा ने कहा कि द सेंटिमेंट्स इज एडमायरेबल, यानी जो उनके बच्चों के, जो लड़कियों के, राजकुमारियों के जो भाव हैं वो प्रशंसनीय हैं. उनका दृष्टिकोण जो कि तोते को ऐसे सिखाती थी. राजा बोला, मुझे बुरा नहीं लगता, भले ही मैं कितनी बार सुनूं, परंतु मैं इन तोतों के द्वारा सुंदर पॉली कहे जाने से ऊब गया हूँ. ओके, वे यह 7 विभिन्न भाषाओं में कहते हैं. इस बात को 7 विभिन्न भाषाओं में कहते हैं. राजकुमारियाँ बोली, मैं यह अवश्य कहूँगा कि वे कहते हैं. राजा बोला, परंतु ये मुझे अपने सभासदों की बहुत अधिक याद दिलाते हैं. मैं यही बात 7 विभिन्न तरीकों से कहते हैं, और वे जो कहते हैं उसका कभी कोई अर्थ भी तो नहीं होता, अर्थात वे मन से ऐसा नहीं कहते. ओके, यानी वो मन से ऐसा नहीं कहते हैं. नेक्स्ट पेज. The princes were vexed at this, and the parrot looked very glum indeed. But Princess September ran through all the rooms of the palace, singing like a lark, while the little birds flew round and round her, singing like a nightingale. Okay, things went on like this for several days, and then the 8 princes put their heads together. They went to September and sat down in a circle round her. My poor September, they said, we are sorry for the death of your beautiful parrot. It must be dreadful for you not to have a pet bird as we have. So we have all put our pocket money together and we going to buy you a lovely green and yellow parrot. Okay, यानी राजकुमारियाँ भी इस पर चढ़ गईं, यानी और जो कुमारी थी और जो उसकी सिस्टर थी वो जो है चिढ़ गई, और तोते भी बहुत अप्रसन्न दिखाई पड़े. उनके पास जो तोते थे वो भी अप्रसन्न दिखाई पड़े. परंतु राजकुमारी सितंबर महल के सभी कमरों में दौड़ती भागती हुई एक भारद्वाज पक्षी की तरह गाती, जबकि नन्हा पक्षी एक बुलबुल की तरह गाते उसके पीछे पीछे उड़ता ही रहता था. ओके, और लेखक कहते हैं कि अब वो जो है राजकुमारी को तोते से ज़्यादा वो पक्षी अच्छा लगने लगा था. ऐसी ही स्थितियों में कई दिनों तक बनी रही, यानी राजकुमारी खुश होती रहती, इधर उधर उछल कूद करती, और वो पक्षी भी उसके साथ में इधर उधर घूमता रहता. अब क्या हुआ देखिए, ऐसी स्थिति में कई दिनों तक बनी रही. तब तक 8 राजकुमारियों ने इकट्ठे होकर एक विचार विमर्श किया. वे सितंबर के पास गईं और उसके इर्द गिर्द एक गोले में बैठ गईं. मेरी प्यारी सितंबर, उन्होंने कहा, हमें तुम्हारे खूबसूरत तोते की भांति हमें तुम्हारे खूबसूरत तोते की मौत का बहुत दुख है, पर यह तुम्हारे लिए अवश्य ही भयावह है. तुम्हारे लिए तो बहुत मुश्किल होगा, ठीक है, कि तुम्हारे पास हमारे जैसा कोई पालतू पक्षी नहीं है. अतः हमने अपना जेब खर्च निकालकर तुम्हारे लिए एक हरा पीला तोता खरीद कर लाने का विचार बनाया है. ठीक है, थैंक यू फॉर नथिंग. ठीक है, अब देखिए, थैंक यू फॉर नथिंग सेड सितंबर, आई हैव ए पेट बर्ड which sings the most charming songs to me, and I don't know what on earth I should do with a green and yellow parrot. Well, my dear, they said, it's absurd to talk of your bird, but the little
fellows flies in and out just as he likes. They looked round the rooms and raised their eyebrows. Okay, यानी in this stanzas the author says that धन्यवाद, यानी सितंबर बोली धन्यवाद, मेरे पास एक पालतू पक्षी है जो मेरे लिए बहुत मोहक यानी बहुत सुंदर गीत गाता है, और मैं नहीं जानती कि मुझे अब हरे पीले तोते की ज़रूरत है, मैं उसका क्या करूँगी। ठीक है प्रिय, उसकी बहन बोली जो कि ठीक है प्रिय बहन, तुम्हारी पक्षी के बारे में कहना व्यर्थ असभ्यता है, जबकि वह नन्हा पक्षी अंदर बाहर उड़ता फिरता है। उन्होंने कमरे में चारों ओर देखा और अपनी भौहें ऊपर उठाई। ओके, अपनी भौहें ऊपर चढ़ाई। प्लीज टर्न ओवर, देखिए। डू यू माइंड आवर आस्किंग, do you mind our asking where your bird is now? They said, he has gone to pay a visit to his father-in-law, said Princess September. अरे अब उन्होंने उससे कहा कि क्या कहा, देखिए, क्या तुम्हें बुरा लगेगा हम उसे पूछें कि तुम्हारा पक्षी कहाँ है। ठीक है, he has gone to pay a visit to his father-in-law, said Princess September. And what makes you think he will come back? asked Princess. He always does come back, said September. Well, my dear, said the 8th princess, if you will take our advice, you won't run and risk like that. If he comes back, and mind you, if he does, you will be lucky. Pop him into the cage, keep him there. That's the only way you can be sure of him. But I like to have him fly about the room, said the young Princess September. Safely first, said her sisters ominously. They got up and walked out the room, shaking their heads, and they left September very uneasy. Okay, यानी उन्होंने कहा था कि क्या तुम्हें बुरा लगेगा अगर हम पूछें कि तुम्हारा पक्षी कहाँ है। वे सितंबर की जो सिस्टर थी वो बोली। अब वह अपने ससुर से मिलने गया है। राजकुमारी सितंबर बोली कि वो अपने ससुर से मिलने गया है, फादर इन लॉ से मिलने गया है। और तुम यह क्यों सोचती हो कि वह वापस आएगा? राजकुमारियों ने कहा। वह हमेशा वापस आ जाता है, सितंबर बोली। वो थोड़ी देर घूम के बाहर से फिर वापस आ जाता है। ठीक है प्रिय, अब राजकुमारी 8वां राजकुमारी बोलती हैं, ठीक है प्रिय बहन, यदि हमारी नसीहत मान लो तो तुम्हें कोई जोखिम नहीं उठाना पड़ेगा। यदि वह वापस आता है तो यह समझ लो कि यदि वह ऐसा करता है तो तुम खुशकिस्मत होगी। उसे पिंजरे में बंद कर लो और उसे यहीं रखो। यही एक तरीका है जिससे कि तुम उसके बारे में विश्वस्त हो सकती हो कि वो कहीं बाहर उड़ न जाए, भाग न जाए। ठीक है, अब देखिए, परंतु मैं चाहती हूँ कि वह कमरे में ही उड़ता फिरे। ठीक है, बट आई लाइक टू हैव हिम फ्लाई अबाउट द रूम, सेड द यंग प्रिंसेस सेप्टेम्बर। राजकुमारी ने कहा कि मैं तो यही चाहती हूँ वो कमरे में ही उड़ता फिरे। और सर्वप्रथम यह सुरक्षा है, उसकी बहनों ने अपशकुन भरे शब्दों स्वर में कहा। ठीक है, बहनों ने कहा कि सर्वप्रथम सुरक्षा है। वे उठी और अपने सिर हिलाती हुई कमरे से बाहर चली गई और सितंबर को परेशान हुआ छोड़ गई, यानी सितंबर को परेशान करके वो वहाँ से चली गई।